जनाब. Question 106. Sir, 106, sir. Statement is laid on the table. Supplementaries, please. Yes. So the minister reply states that the initial results shown in the limited trial of solar energy shows that to certain extent it can fulfill the electrical energy requirement in narrow gauge coaches and not in broad gauge coaches. I would like to know from the minister if he is looking at other source of non-conventional energy, and if so, what are the sources? Sir, we are in the process of changing to a great extent the energy mix of railways. Railway uses two kinds of energy. One is the traction energy and one is the non-traction energy. And our target is to work on both. On solar, our target is to make 1,000 megawatts of solar energy. 500 megawatt from rooftop, 500 megawatt on land-based PV panels. Other is, we are trying to do wind energy. The target is 200 megawatts, and I'm happy to say that the installed capacity is already 36.5 megawatts. One we recently installed in Jaisalmer also. Waste to energy. We are working on 10 locations. Already Jaipur plant produces 5 tons a day, 100 kilowatt hours per day, 15 tons a day in Delhi plant, and tender for 8 more are under various stages of finalization. I already told the railways that they must also explore the possibility of tying up with a city, because the municipal corporation and railways waste will be substantially higher than when we try to put up only waste to energy plant only based on the railways waste generation. And therefore we are working on that. In addition to this, we are doing energy audits. I am happy to say that 643 locations have been covered with energy audits. Thank you. In addition to this, we are working, as you correctly asked me the question, on the top of the railway coach itself, we are trying to put solar panels on an experimental basis, and on narrow gauge it has been quite successful. But we need, for an air-conditioned coach, 25 to 30 kilowatt hours per AC coach, whereas the capacity today of a solar panel is only 4.8 kilowatt. So therefore there is a difference. So therefore narrow gauge and the capacity of the solar panel to generate it matches. Therefore we are doing it. Of course, as the efficiency of solar panels improve, currently at about 17-18% to substantially higher level, we will be able to use that also. Today, we are running a climate change express, and that express also on experimental basis, we have put on the top of it the solar panel. Thank you. Second question. Sir, the minister stated about solar energy. I had asked for if they are looking for other non-conventional energy. Non-conventional energy. I gave you all these information. What are the sources of non-conventional energy? Have you identified what are the non-conventional energies? Thank you. Non-conventional energy includes wind energy, which I just mentioned. Non-conventional energy includes waste to energy, which I just mentioned. We are also includes, and the former Minister of Power, Jairam Ramesh Sir, will tell you that these are all non-conventional sources of energy. Thank you. Shri Premchand Gupta. फॉसिल फ्यूल आधारित पावर जनरेशन के ऊपर सारी दुनिया में इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है, पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए और दूसरी समस्याओं को देखते हुए। श्रीमान जी, रेलवे के पास हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है आर्म फोर्सेज और उसके बाद सबसे बड़ी लैंड बैंक है। तो आप ये रेलवे की वैगन्स के ऊपर में जो रूफटॉप आप जो ट्रायल कर रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है, it must be more expensive than what you can do on the ground or on the railway rooftop of the railway buildings. So have you done any study on this account, whether it is cheaper to install panels on your land bank and rooftop of your existing buildings in comparison to railway wagons? Because railway wagon के ऊपर में आप अगर fix करते हैं तो it's very expensive process, and it is the power supply is not constant. What it can provide is zero power or 10 unit this bulb they can be switched on, or they can provide power to fans. Thank you. So why don't you have a massive plan
You have so much of land bank, go for massive, wind power generation, waste management power generation, and solar power generation. Member is absolutely right. In fact, as I mentioned, we are doing both. Very small portion, very, very minuscule portion will come from the top of the coach, because that's the experimental basis. Most of it is coming from land-based 500 megawatts and another 500 megawatts from rooftop. The rooftop of all the railway buildings and using a lot of electricity. The power of the rooftop will be used for a captive consumption essentially in that building where it is put up, whereas the land-based solar panel generation will be used for traction power. And that is what exactly we are trying to do. But to understand what you're asking me is a very valid point. We are already tied up yesterday only. I'm happy to inform the House that United Nations Environment Program, which is a specialized body of the United Nations, we are tied up with them to also ascertain the entire potential of how much solar energy railways can generate from various sources. We are also working to find out how much more of wind, solar, waste to energy and all forms of energies can be used. In addition to this, we are trying to, as I was saying, profile of energy. So we are trying to find out how can we buy electricity directly from the market by using open access under the Electricity Act 2003, by which we have reduced the cost of energy consumption, cost of energy purchase significantly. In fact, sir, our target is to save 41,000 crores of energy bill in the course of next 10 years. And we are already on track, we have saved about 4,000 crores. Because that's the only way railway can be sustaining, because salaries is the biggest source and the second source of cost is energy. So we are reducing that. Thank you, Shri Amar Shankar Sable. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, देश भर में रेलवे कारण ऊर्जा के लिए कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है और वो कम करने के लिए कोई योजना बनाई है? मैंने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके तहत हम बड़ी मात्रा में एनर्जी को सेव भी कर पाएंगे और उसके लिए एनर्जी सेविंग ऑपरेशंस बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे। एलईडी लाइट्स जो पूरे रेलवे में जहां लगे हैं वहां पे हमको एलईडी लाइट्स में हम कन्वर्ट करें लाइटिंग को, साथ ही में हम लोग एनर्जी ऑडिट भी कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे इंस्टॉलेशन में एनर्जी ऑडिट हो भी चुके हैं। ये सभी का परिणाम ये होगा कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी जो आप चाहते हैं पूरी मात्रा में उसमें हम सफल हो पाएंगे। Shri Jairam Ramesh. I'd like to ask the Honorable Minister, some years ago there was a lot of excitement on the use of Jatropha to substitute for diesel in the railways. The railways are a fairly substantial consumer of diesel, and there was a lot of talk that Jatropha would be grown on the land that is owned by the railways, and this would be used to substitute for diesel. I'd like to ask the Honorable Minister whether there is some thinking on Jatropha. Sir, I remember there was an initiative about it, but what we are doing today is using biofuels and also using part of the diesel is actually getting, we are using part of the biofuel and adding it to the diesel, by which we are able to save substantially. But the plantation of Jatropha, etc. has not happened. I will find out why, whether it was really, what is the reason for it, I will just find out. Question 107. Supplementaries. Honorable Chairman, sir, I asked the Union Minister whether the government may expedite the state's demand sort of 39,565 crores as draft relief package to Tamil Nadu since the inter-ministerial central team submitted its report and all the districts, our states, 32 districts have been officially declared as drought affected. The major amount of relief extended by the central government is not helpful for the crisis of drought affected farmers. Thank you. सर, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि अपनी जो परंपराएं और प्रक्रियाएं एस्टैब्लिश हैं उसमें राज्य सरकार के ज्ञापन आने के बाद
केंद्रीय टीम का दौरा होता है और केंद्रीय टीम उनका अहवाल सुपुर्द करती है और उसके ऊपर एक कमेटी होती है हमारे डिपार्टमेंट की। कल ही इसकी बैठक हो गई है और उन्होंने अनुशंसा करके HLC को आपका रिकमेंडेशन भेज दिया। दूसरा प्रश्न Sir, my second supplementary question is, sir, demonstration has brought the money lenders to the doors of helpless farmers who were already in deep distress. Since they don't have an option, the farmers have to accept the money lenders' offers. Will the government provide interest-free loans to drought-hit farmers, sir? Thank you. सर, ये जो विशेष आपदाओं का प्रबंधन करने की अपनी जो पद्धतियां हैं उसमें अपने हेड तय किए हुए राज्य सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर करना चाहे तो करेंगी। राज्य सरकार की दरखास्त के देखने के बाद, कमेटी की अनुशंसा के बाद और जो भी हेड पर देने की अनुमति दी गई है वो हमारी ओर से HLC को भेज दिया गया है। आप जो पूछ रहे हैं कि इनको ब्याज मुक्त लोन देने का इस प्रावधान इसमें नहीं होता है। श्री रागेश। There has been a sharp reduction of rainfall in Kerala during the last southwest monsoon. The reduction was a record of more than 34%. And it affects the state of Kerala in a very big way. The whole state is drought affected, and considering the particular situation, whether the government will consider... Question relates to Tamil Nadu. No, but it relates to drought. Sir, it relates to drought. I am talking about drought. So, whether the government will declare Kerala, Kerala also... सुन लीजिए इनकी बात जी। Whether the government will declare Kerala also as a drought-affected state, because it affects Kerala in a very big... The Chief Minister himself had approached the central government for central assistance, and I want to know whether the central government will provide necessary assistance to the state of Kerala and declare Kerala as a drought-affected state. वो यदि राज्य सरकार घोषित करती है और हमारे पास मेमोरेंडम भेजती है तो निश्चित रूप से हमारी टीम जाएगी, अध्ययन करेगी और हम पर्याप्त सहायता करेंगे। ठीक। श्रीमती विजला सत्यनाथन। Thank you, Honorable Chairman, sir. Regarding the memorandum submitted by our Honorable Chief Minister Shri Edappadi Palanichami to our Honorable Prime Minister on 27 February 2017, he has requested, as our state has been severely affected by drought, and the state has been declared drought hit, and the relief of the farmers and the damages caused to the crops due to the heavy failure, and we have to also ensure the drinking water supply. Various temporary, we have to make all various temporary measures to ensure drinking water supply in the highest summer, which is ensuing summer. So I would like to know adequate fodder availability also should be maintained for the cattle, and also employment generation programs has to be also taken up on war footing. We urge, we need the central assistance, and at the war footing we need 2,500 crores to be released with immediate effect as per the request of our Honorable Chief Minister. Thank you. Would I like... Thank हमारी टीम गई थी और टीम की रिपोर्ट आ गई है, अंतिम बैठक हो गई है और HLC जो हाई लेवल कमेटी होती है उसके पास उसे भेज भी दिया गया है और लगता है कि एक सप्ताह के अंदर जो राष्ट्रीय आपदा कोष के नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के आधार पर अच्छी सहायता मिलेगी। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5-7 वर्षों में भी कभी सूखा आई होगी और जितनी सहायता मिली होगी, मेरी जो जानकारी है कि तमिलनाडु को अभी पिछले लगभग
6-7 वर्षों में सूखा प्रभावित होने के कारण 19,665 करोड़ का मांग हुआ था। पिछली बात बता रहा हूँ, 600 एक मिनट पिछले एक 7 साल में 624 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आपदा कोष से मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आपने डिमांड किया है, बहुत बड़ी सहायता राशि भारत सरकार आपके राज्य को देगी। उसकी बैठक HLC की होगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी सहायता आपको मिलेगी। श्री हरिवंश, no, that's all right. सवाल जरूर तमिलनाडु से जुड़ा है, पर सूखे और कृषि से भी जुड़ा है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से यह जिज्ञासा है जानने की कि कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि महाराष्ट्र में 100 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। क्या सूखे की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और कारण है, और कृषि मंत्री को इसकी सूचना है क्या, और देश के किन और अन्य हिस्सों में सूखा पड़ा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए? जानकारी का सवाल है, वो जैसे आपको मिला है हमको भी मिला है, लेकिन विधिवत रूप से जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है जो गृह मंत्रालय के अधीन है और उसके तहत हमें आंकड़े आते हैं, तो उसके तहत 2015 के आंकड़े आ गए हैं, 16 के आंकड़े अभी तक नहीं आए। थैंक यू। क्वेश्चन 108। थैंक यू Sir, through you, I would like to know from the Honorable Minister that, sir, if you look at the list of the stations as part of the reply, sir, the northern part of the country, the central part of the country, the southern part of the country, even the western part of the country, there are more than 15 stations in each part of the country. But when it comes to the east, there are only 2 or 3 stations. I want to know from you, sir, when does he plan to remove this discrimination and ensure that the eastern part of the country also enjoys Wi-Fi as the other parts of the country are enjoying? Thank you, sir. Sir, this criteria for deciding where internet service will be provided, we already said, that is 400 stations. We'll be covering, of course, large number of stations eventually, but the first batch with the Google was about 400 stations, and the criteria for that was the category of the station. As you know, the category of the station depends upon the volume in that particular place. So the A1 category, which are non-suburban stations with annual passenger earnings of more than 60 crores, A category, non-suburban stations with annual passenger earnings of 8 crores to 60 crores, etc. So we'll definitely ensure that those stations who covered on the east will also be definitely covered. East or west, I think east is always, the sun rises there, so east will... No, please. The sun rises in the east, so we cannot ignore the east. Second question. Sir, thank you, sir. Sir, I want to know, is Railtel Corporation different from Government of India? I thought it was a subsidiary, because here when I've asked a question, the detail of fund allocated or spent, the answer says that it is done by Railtel Corporation without any fund allocation from the government. Sir, I mean, why the Railtel Corporation is a 100% subsidiary of the Ministry of Railways, or it is owned 100% by Ministry of Railways? So figures are not mentioned. Because what we want to know, sir, is Wi-Fi, this is being given free. We want to know from the Minister through you, till how much time will this be given free? When do they plan to charge? Thank you. Sir, there is not any amount of money that is provided by the Railway Ministry from its own budget for this particular project. Railtel Corporation Limited, you're right, it's owned by the Government of India through the Railway Board, Railway Ministry of Railways, but administrative control of Ministry of Railways. Sir, there were more than 7,000 stations which were covered by underground optic fiber cable network years ago. So this is the backbone that is required to offer any services, the broadband services like the Wi-Fi. When this was created, obviously railways are interested to offer better services to the customer. So we said we'll offer free Wi-Fi to the customers, and therefore Railtel then tied up with others and tried to provide this service. So we are not providing any fund. Now the question is how far we'll provide free. It is something, as and when we take any decision, you'll be the first one to know. Shri Bhattacharya. Honorable Minister has said the Rail Corporation of India, a PSU, under this ministry, which has been entrusted with the project of Wi-Fi facility at the station, has necessary mechanism to block the website in terms of guidance, etc. My question is very simple. One, whether in a running train, how we can connect any other place
by a mobile phone or in a land phone. Is there any arrangements has been made by the railway? Thank you. This Wi-Fi facility is offered to at a station, which is actually a stationary form. Of course, there is a proposal to also do it in the railways while they are running. And of course, these interconnectivity issues, the interconnectivity issues will definitely come in. But currently, and we are definitely trying to do this. In fact, in some trains, it already started being done, but we'll try to offer it in more services. Shri Mahesh Poddar. सर, आज के दिन में जब पोर्टेबल वाईफाई इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, तो रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी पोर्टेबल वाईफाई के थ्रू लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आम लोग जो साधारण लोग हैं उनकी सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पे वाईफाई रेलवे प्रोवाइड कर रही है अपने और बहुत सारे सुधारों के साथ साथ। तो क्या दिक्कतें आ रही है कि रेलवे बहुत बड़े स्तर पे और उसको कैटेगरी वाइज नहीं करके बड़े स्तर पे हर स्टेशन पे प्रोवाइड करने के लिए जहां कोई क्राइटेरिया हो कि इतने पैसेंजर उपयोग करते हैं उसके आधार पे लगाने की बात क्यों नहीं करती है? आने वाले समय में ये तो हमारी उम्मीद है और हमारी चाहत भी है और हम ये बिल्कुल करेंगे भी कि सब जगह पे, लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू यहाँ से किया गया है 115 स्टेशन के ऊपर आज ये सुविधाएं उपलब्ध है और इसका लाभ बड़ी मात्रा में आम आदमी ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है वो सबसे अच्छी है और गूगल का कहना है कि ये जो दिस इज द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट पब्लिक वाईफाई एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो ये यहाँ भी लगेगी, सब जगह पे होगी, लेकिन शुरुआत यहाँ से की गई। Shri Vijay Sai Reddy. Yeah. See, it is good that Government of India is providing Wi-Fi facility in the stations which are listed in the answer. Sir, there are umpteen number of cases that are being reported where the persons who do not hold the valid tickets get into the railway stations and then misuse the facility that is being provided by the Government of India. I just would like to know from the Minister, Honorable Minister, whether any procedure being laid to prevent the misuse, such as once the PNR number is entered into the system, then only the Wi-Fi facility may be allowed to be provided or used by the passengers in this regard. Thank you very much. That's a fine idea. Sir, actually, all the valid ticket holders, when they key in their PNR, obviously they can use the facility. But today it is also available for others. So, like I am telling some students who come there and do it. Of course, if your suggestion is that we should not allow that, we'll consider it. But I'm just saying today the facility is available and the misuse what you're talking about, is in a way, it's a public service which is offered to people. So I don't think it's a misuse in that sense of the term. But of course, to ensure that nobody can access sites which are prohibited by DOT, all the DOT guidelines are followed. Question 109. Questioner not present, let the answer be given. Shri Rapolo. Respected Chairman, the Honorable Minister is gracious enough to record the fact that the Food Corporation of India is going away from its regular duty. By the time of the demission of office by UPA, the storage capacity owned by Food Corporation of India was 156.47 lakh metric tons, wherein as on this date, it has got reduced to 154.15. The role of Food Corporation of India in food storage, in particular the expanding necessities of the cold chain and the regular food storage requirements are enlarging, but the union government is not encouraging the Food Corporation of India and diverting its role and bifurcating its role into various divisions. I would like to know from the union minister whether there are any designs to dismantle the Food Corporation of India in serving the food requirements and food storages. Thank you. Honorable Chairman, sir.
since it's my maiden reply, blessing of all the learned and honorable member is solicited. In fact, honorable member has gone through this table, reply table, and as he told that the capacity is decreasing, मैं आपकी नॉलेज में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कैपेसिटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई ऐसा नहीं है मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का कि एफसीआई को पे कम ध्यान दिया जाए. दिस इज़ नॉट द थिंग. कैप के अंदर कवर्ड एंड प्लिंथ जो एरिया होता है उसमें धीरे धीरे जो एफसीआई का मामला था उसको कम किया जा रहा है. और इंस्टेड ऑफ दैट we are going for silos. There are 2-3 systems of this storage. First, FCI is the main agency. Second, CWC, Central Warehouse Corporation, the second agency. And third is the important private entrepreneur guarantee scheme is there. And now we are going for the latest, because the high-level committee was commissioned, and that committee gave the report that now FCI and the government and storage capacity should be in the silos. So 100 lakh ton का जो road map है silos का, that is also in the pipeline. We are already working on that line, and 13.7 lakh ton is already been ordered for construction. मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि इस कारण से कोई कैपेसिटी में हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद में कमी नहीं हुई है. एफसीआई अपने जितना रिक्वायरमेंट है at the time of in the month of June, that is the maximum time for the procurement. और उस समय वीट का प्रोक्योरमेंट होता है. साउथ में आपका खरीफ का जो आपका चावल का सेकंड प्रोडक्शन भी आता है. और इसी प्रकार से मैक्सिमम के टाइम पे भी रिक्वायर्ड 600 lakh ton, while we have the capacity is 775.74 lakh metric ton. So capacity wise no problem. Even we are not discriminating with the FCI. FCI is the main agency who is doing all these jobs. FCI has hired the secondly, as you know, a lot of the states are going to be DCP state, decentralized purchasing states. They are storing themselves in their own sources, own godowns. That's why एफसीआई की जो कैपेसिटी है उसका 80% तक ही यूज़ हो पा रहा है. और अभी जहाँ स्टेट डीसीपी स्टेट से उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं कि काइंडली गिव प्रायोरिटी टू द एफसीआई गोदाम. सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ द गोदाम्स, नो डर्थ ऑफ द स्टोरेज एट ऑल. और एफसीआई के साथ में किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है कि सब वी आर डिस्करेजिंग द एफसीआई और द स्टेट गवर्नमेंट आर डिस्करेज. दैट्स नॉट द मैटर. Thank you. Shri Tulsi. So the Honorable Minister suggests that there is no shortage because the storage capacity has gone up. But the fact remains that lakhs of food grain, of wheat, rice, paddy is wasted because of inadequate storage or the poor quality of storage. India in the global hunger index is at position 55. We are below Nepal, Uganda, Angola, and yet we say that we have adequate storage. How does the Honorable Minister resolve this reality? Thank you. ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपके माध्यम से माननीय ऑनरेबल मेंबर को माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा. एक्चुअल में फूड कॉरपोरेशन सेंट्रल वेयरहाउस पर दे हैव नो डेप्थ ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी. पिल्फरेज फर्स्ट, सेकंड डैमेज, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट में इनमें लॉसेस होते रहते हैं. और वो आप देखेंगे ए लेमैन सामान्यतः ये सोचता शायद वी आर ऑलमोस्ट 600 लाख टन के आसपास हम लोग हर साल मोर देन दैट हम लोग स्टोर करते हैं. आउट ऑफ दैट 3000 ओनली इन द लास्ट ईयर 3000 मेट्रिक टन लॉसेज हुआ. दैट इज नेगेटिव 0.0 समथिंग. सो
लॉसेस घर पे कुछ सामान रखते हैं उसमें भी थोड़ा लॉस होता है, इतने बड़े गोदाम से इतने बड़े ट्रांजिट होता है उसमें लॉसेज जरूर हो रहा है। सेकेंडली डैमेज का कारण बायोटिक कारण भी है, एबायोटिक कारण है, कई बार नेचुरल कॉज है, हेवी रेनफॉल्स हैं, इन कारण से थोड़ा सा लॉसेज होता है। मैं आई एग्री विद द ऑनरेबल मेंबर, लेकिन इसके कारण स्टोरेज कैपेसिटी के कारण नहीं है, स्टोरेज इज सफिशिएंट, बट लॉसेज के कारण दूसरे भी ट्रांजिट लॉसेज भी होते हैं। आपके जो फंगस वगैरह लग जाए, कई बार हम सारे प्रिक्योर करने के बाद में ऑल टेकिंग द प्रिकॉशंस, इवन देन सम लॉसेज आर देयर, बहुत मीगर लॉसेज आर। श्री सुरेंद्र नागर। सभापति जी, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, उस जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जो खासतौर से गेहूं के उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद्यान्न का जो भंडारण है वो सफिशिएंट है। मैं जब क्षेत्र में आता हूं तो बहुत सी ऐसी जगह स्टोरेज खाद्यान्न का किया गया है जहां खुले में है, केवल उसके ऊपर तिरपाल रखा गया है और बारिश में वो खराब भी होता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार 100% खाद्यान्न के भंडारण की जो क्षमता है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य रखा है कि कब तक 100% जो खाद्यान्न है हमारा उसका स्टोरेज हो सके, उसके लिए कोई टारगेट रखा है कि किस वर्ष तक या कब तक आप इस भंडारण की क्षमता को प्राप्त करें? थैंक यू। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि आपका चिंता सही है या आपका चिंतन है कि 100%, आज मैं आपको कह रहा हूँ हमारा 100% ऑलरेडी है। कई बार प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो प्लेन एंड कैप वाला जो है, प्लीज 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 सुन लीजिए, कृपया सुनने का कष्ट करें। प्लेन जो स्केप जो है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। पहले काफ़ी हद तक यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माननीय सदस्य महोदय कि पहले कैप की कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसमें ज़्यादा रखा जाता था, धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है, जो कवर एंड प्लिंथ वाला है। उसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव ब्रॉट द स्कीम ऑफ साइलोज दैट इज 100 लाख टन, जो वो ऑलरेडी है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे आपका पेड सिस्टम है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी, जिसमें 151 लाख टन का जो टारगेट रखा था, इसमें से वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 136 लाख टन इज ऑलरेडी अंडर द पीईजी स्कीम्स। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपका बुलंदशहर का स्पेशली जो है, कहीं बुलंदशहर में कमी है तो आप हमें बताएं, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया सभापति जी, मैंने पूछा कि 100% भंडारण की ऑनरेबल मिनिस्टर 1 मिनट। सभापति जी, जो प्रोक्योरमेंट का सवाल है, एक तो प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन बहुत बड़ी संख्या में होता है और प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट जो है अकेले एफसीआई नहीं करती है, एफसीआई तो केवल 10% करती है, 90% राज्य सरकारें करती है और राज्य सरकार जो प्रोक्योरमेंट करती है हम उसको पैसा देते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 तरह के स्टेट्स हैं, एक डीसीपी स्टेट्स है, एक क्या कहते हैं कि स्टेट्स है जहां हम भी खरीदते हैं, राज्य सरकारें भी क्या कहते हैं खरीदती है, हम उसको पैसा देने में कोई कोताही नहीं करते हैं। आपने जो कहा कि बाहर में अनाज रखा रहता है और क्या कहते हैं कि उसको, ये मिसकंसेप्शन है कि बाहर में जो सामान रखा रहता है वो एफसीआई का है। बाहर में जो सामान रहता है वो किसान का है। जब तक एक मिनट पहले सुनिए, जब तक हमारे पास में किसान से अनाज खरीद करके हम राज्य सरकार को पैसा देते हैं, राज्य सरकार। और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा, स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास में 775 लाख क्या कहते हैं टन की कैपेसिटी क्या कहते हैं उपलब्ध है, जिसमें केवल पीक पॉइंट पर 600 लाख टन है। तो हमारे यहाँ उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार यदि कहीं किसान है वो खेत में रखता है या राज्य सरकार उसको खरीदती है, हमारे पास में नहीं देती है, तो हमारी जवाबदेही नहीं है, वो राज्य सरकार की जवाबदेही है। थैंक यू। देखिए, हम 110% खरीदने को तैयार हैं। जब हम एमएसपी लागू किए हैं तो हमने कहा है कि एक दाना खरीदेंगे, लेकिन कैसे, लेकिन स्टोरेज है हमारे पास में,
775 लाख टन का है और पीक पॉइंट पर केवल 600 लाख टन है, तो हमारे पास में तो स्टोरेज 175 लाख टन का ज्यादा है। Thank you. Question 110. Questioner not present. Let the question be answered. सभा पटल पर रख दिया गया अध्यक्ष महोदय। जी, श्रीमती ठाकुर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 31/12/2016 तक 1127.81 लगाए, लेकिन अभी भी हिल एरिया का स्पेशली पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे टावर्स नहीं। अगर हम वहां के डिविजनल या सर्कल उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम टावर्स नहीं लगा सकते। मैं ऐसे एरियाज बता सकती हूँ, खास करके धर्मशाला डिवीजन में, देरा सब डिवीजन में ऐसे एरियाज हैं जहां अभी भी लोगों को मोबाइल, हालांकि हमारे मंत्री जब पंडित सुखराम जी से उन्होंने पूरी कोशिश की थी, ज्यादा आज उन्हीं की देन है कि हम इतने मोबाइल्स जो हैं वो पूरे देश में हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज हैं जिनमें टावर्स के लिए डिविजनल सर्कुलर उनके सर्कल के पास पैसा नहीं है। क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में पैसा फंड्स देने की कृपा करेगी जिससे कि वहां पे टावर्स लग सके और लोगों को वो सहूलियत मिल सके? मैं ये जानना चाहती हूँ मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, ये सच है कि पूरे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और भारत सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं और उसका प्लान भी बनाया है, जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के लिए एक प्लान हमारा जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। हिली एरिया जिसमें आपका प्रदेश आता है उसका भी हमने प्लान बनाया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये प्रियॉरिटी के काम है और आने वाले 2018 तक इसमें से अधिकांश काम हम पूरा कर लेंगे। अभी तक 55,000 मोटे तौर पर 2011 सेंसस के आधार पर 55,000 विलेजेज हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और जो लेवी भारत सरकार लेती है यूएसओएफ से, उसमें हम प्लान बना रहे हैं कि देश के जो शेष गांव रह गए हैं उनको आने वाले दिनों में मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो आप निश्चिंत रहें, हिली एरिया हमारी प्राथमिकता में है और उन क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, इस पर सरकार, देखिए आप जो लिख के देंगे, जो संभव होगा मैं जरूर करूंगा। थैंक यू। श्री राजीव गौड़ा। I just mentioned the Universal Service Obligation Fund. This is the fund that is available to provide connectivity to remote areas and underserved areas. That fund is massively underutilized. How much percentage of that fund is utilized and why is it not being harnessed for providing services to these remote areas in the way that it's necessary? ने बहुत उचित प्रश्न पूछा है। भारत के कंसोलिडेटेड फंड में काफी पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मंत्रालय खर्च करता है उसी हिसाब से वित्त मंत्रालय उसको रिलीज करता है। अभी तक जो खर्च की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, अब उसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। और जैसा मैंने बताया कि जो 55,000 गांव शेष रह गए हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को हमारे यहाँ से पत्र गया है। हमने अनुरोध किया है कि और भी जो गाँव हैं वो कृपया हमें उसकी सूची भेज दें ताकि हम इस आने वाले प्लान में इसे निश्चित रूप से ले सकें। श्रीमती रेणुका चौधरी। That hilly regions and remote regions in Maoist district areas are traditionally occupied by them. And we are subject to, my district Khammam comes under this. Now we are always subject to attacks where entire telephone towers have vanished in 3 days after it took me almost a year to get it established there. Do you consider prioritizing these communication towers in the Maoist district areas and in the Maoist affected areas to ensure that we have continuous communication for the safety and welfare and development of those areas? Thank you. अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि जहां माओइस्ट एरिया है वो भारत सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्रालय ने हमें निश्चित रूप से कुछ निर्देश दिए थे। केवल 15 या 16 स्थानों को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो सैंक्शन था वो टावर लगा दिए गए हैं, वो रेडिएट कर रहे हैं। कोई विशेष क्षेत्र है तो माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि वो
मुझे लिखित रूप से दे दें तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या का भी समाधान हो। कि जब सैंक्शन हो जाता है टावर और उसको उखाड़ देते हैं माओइस्ट, तो दोबारा वहीं टावर लगाने में कहा जाता है कि अब आप अपने बारी रुके, आप ठहरिए कि पूरा एरिया कवर करके फिर दोबारा आपको सैंक्शन होगी। उतनी देर में तो बड़ा नुकसान हो जाता है। मैंने वही अर्ज किया आपसे कि अगर कोई ऐसी घटना आपके क्षेत्र में है तो कृपया उसकी सूचना दें, मैं उस पर कार्रवाई करूं। थैंक यू। क्वेश्चन 111 जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111. Yes, let it be answered. Sir, statement is laid on the table. Supplementary, please. साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकार ने खान पान नीति 2017 घोषित की गई है, इसके अभी जो सहूलत मिल रही है, तो ये नीति के कारण आने वाले दिनों में पैसेंजर को इससे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, तो कैसी मिल सकती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सर, आज की जो खान पान सेवा के बारे में जो नीति है, उसमें आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए 27 फरवरी को हम लोगों ने एक नई नीति जारी की है। इसमें काफ़ी आमूलाग्र परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें एक बात यह है कि खाना बनाने वाली और खाने का वितरण, वो दोनों व्यवस्था में पूरी मात्रा में हम लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया। खाना बनाने के लिए बेस किचन बनाए जाएंगे और पूरी मैकेनाइज किचन IRCTC के निगरानी में काम करेंगे। उसके लाभ ये होगा कि पहले खाने की क्वालिटी जब जहाँ बनती है वहाँ ही अच्छी नहीं होगी, तो जब लोगों को दी जाती है तो उसमें तो जरूर खराबी हो। तो इसके लिए सबसे पहले उसमें एक आमूलाग्र परिवर्तन ये है। दूसरी बात, जो खाना लोगों को देंगे उसके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सबसे अच्छा प्रोफेशनल एजेंसी को हम लोग, अभी वो टेंडर बन रहा है, उसको सबको इन्वाइट किया जाएगा और वही उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। और ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ ही में जो स्टैटिक यूनिट है, उसमें भी हमारी सभी महिला सदस्य सुन के शायद खुश होगी कि 1/3 हम लोगों ने उनके लिए आरक्षण रखा है कि जहां भी स्टॉल दिए जाएंगे उसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्टॉल हमने रिजर्व करने का फैसला कर दिया। 1/3 कर दिया। पार्लियामेंट ने अभी तक सांसद के बारे में करेंगे, लेकिन हमने ये पहला फैसला कर दिया। साथ ही में हम लोगों ने ये भी किया है कि जो स्टैटिक स्टॉल है पहले लाइफ लॉन्ग दिए जाते, आज वो 5 साल के ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, ताकि क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर फौरन हम एक्शन ले पाएंगे। साथ ही में हमने बड़ी मात्रा में ई-कैटरिंग की शुरुआत की है। आज आपको जो खाना चाहिए, आपके पसंद का खाना आपके सीट के ऊपर दिया जाता है, उसके लिए फूड एग्रीगेटर बिल है। लेकिन ये जो पुरानी नीति थी, उसके तहत हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी खाने की। आज जो जिस तरह से खाना लोगों को दिया जाता है उसके बारे में शिकायत है, इसके लिए हमने एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश किया। जो भी कोई शिकायत करना कर सकता है। ई-कैटरिंग जो और भी शिकायत है उसके लिए ट्विटर हैंडल भी दिया। लेकिन जो शिकायत आएगी, क्योंकि जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, तो शिकायतें जरूर आएगी। इसके लिए हमने उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन करने का फैसला किया है और मुझे कहने के लिए आनंद हो रहा है कि वो पूरी मात्रा में कार्यान्वित करने की शुरुआत भी हुई है। जो पुरानी व्यवस्था है उसके लिए अभी हम एक्शन ले रहे हैं। आपने सर क्वेश्चन, उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था एक स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में था। मैं आपको कहने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो ट्रेन है जिसमें इस तरह की सुविधा लोगों को दी जा रही थी, इसके बारे में बहुत शिकायतें थी। अब ये तो वेस्टर्न रेलवे डील करता है, रेलवे बोर्ड के पास नहीं आता है, मेरे को भी उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने उसमें देखा और ये बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारी शिकायतें आई थी। मैंने आदेश दिया और सर मुझे कहने के लिए खुशी है कि जो अंबुज होटल एंड रियल इस्टेट प्राइवेट में जो कंपनी काम करती थी, उसका कल हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और उसके लिए हम एक एक्शन लेंगे। उसको हमने ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, क्योंकि ये सुविधा हमें भी पता नहीं। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि साउथ इंडिया से जो ट्रेन आती है, बहुत सारी ट्रेनें लगभग 20 के आसपास, वो ट्रेन अहमदाबाद यार्ड में आके पड़ी रहती है 24 घंटा या 20 घंटे तक। तो उस ट्रेन को जो सौराष्ट्र तक लंबाई जाए और पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, राजकोट, सुरनगर तक, तो रेलवे को भी मुनाफा होगा और साउथ इंडिया से आने वाली यात्री को भी सुविधा मिलेगी। तो ये ऐसा विचार कोई सरकार के माध्यम से कोई है आगे?
पान के संबंधी नहीं है, फिर भी एक सुझाव है, सुझाव के ऊपर हम जरूर सोचेंगे। थैंक यू। श्रीमती कहकशां परवीन। बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि राजधानी एक्सप्रेस की बात हो रही है और खान पान की बात हो रही है। कुछ दिनों से जो जितनी राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी है या फिर रांची राजधानी है, इन सब राजधानियों से पहले जो रसोई यान थे एसी फर्स्ट क्लास के लिए उसे हटा दिए गए हैं और एक ही रसोई यान है, उससे सारी ट्रेन के जो लोग आते हैं सवार, उनको सबको खाना मुहैया कराया जाता है। लोग अपने वहां से खाना जब बन जाता है तो वो लाते हैं और अपने अपनी बॉगियों में रख करके लोगों को सर्व करते हैं खाना। एसी फर्स्ट क्लास की ये स्थिति है कि शौचालय के बगल में जो जगह होती है वहां पर से खाना लोगों को परोसा जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि एक तरफ जब खाना परोसा जाता है उस ट्रे पे जो कागज मैट लगाए जाते हैं उसमें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात कही जाती है, तो क्या इस तरह से जो खाना परोसा जाता है, खाने में भी कराहियत होती है, वो बर्तन कहाँ धोते हैं, वो चम्मच अगर बेसिन में गिर जाए फिर हमें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, हम तो देखते नहीं हैं लेकिन इससे अंदाजा लगाते हैं। तो जो आपका स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का सपना क्या इससे साकार होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। सर अभी तो आपने जो बात कही कोई स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में, उसके बारे में तो मैं अभी जानकारी लेके आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा था कि जो पुरानी व्यवस्था पुरानी नीति के तहत जो चल रही थी उसको लेकर जो शिकायतें आ रही थी, जो आप भी करे वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही बात चल रही है, उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो कहीं पे नहीं होगा, उसकी एक मैकेनाइज लेवल पे ही उसका खाना बनाया जाएगा, रसोई वहीं पे रहेगी और उस पे जो खाना बनने के बाद उसका मैकेनाइज्ड होगा और IRCTC उसके लिए जिम्मेदार बनाई गई है ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो, कोई निजी कॉन्ट्रैक्टर उसमें काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, आपको खाना बनने के बाद रसोई से लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो करने के लिए अच्छी मात्रा में जो प्रोफेशनल एजेंसीज है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जिनका नाम पहचान है ऐसे लोगों को दिया जाए। लेकिन आपने जो पूछा डिब्रूगढ़ राजधानी के बारे में, मैं जरूर देखूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ, थैंक यू, मैं देखता हूँ और जरूर उसके देखता हूँ। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सांसद भाई बहन या कोई भी आदमी इस तरह का खाना खाएंगे, उसका जरूर देखें। थैंक यू डॉक्टर जेठिया, थैंक यू। मैं आपका सवाल खत्म हो गया। माननीय सभापति जी, खाना और पानी, खाना और पानी और उस पर हो अच्छी मेहरबानी तो हमारी सुधर जाए कहानी। मैं जानता हूं कि कुछ अच्छी शुरुआत करने के लिए जैसे नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में जो खाना दिया जाता है बहुत सलीके से और बहुत बेहतर खाना मिलता है, किंतु शताब्दी एक्सप्रेस जितनी चलती है, जिसमें मैंने सफ़र किया है, वहाँ न तो खाने की गुणवत्ता को मेंटेन करने के कोई उपाय हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि जो सफ़र करता है आदमी, रेलें जब कभी देर हो जाती है तो खाना उसको खाना ही पड़ता है और इसलिए खाना ऐसा हो जिसमें कि सबका गुजारा हो जाए और साफ सुथरा हो जाए। तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें डिशेस हो ऐसी जरूरत नहीं है, किंतु जो भी मिले वो अच्छा मिले। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अच्छे खाने को देने के उपाय क्या करेंगे और जो खाना जो खान पान की सेवाएं रेलवे स्टेशन पर, उस रेलवे स्टेशन पर गर्म खाना मिले उसके लिए LPG के बर्नर वगैरह जो हमारे नागदा और रतलाम और रेल मंडल में बंद कर दिए गए हैं, अच्छा गर्म खाने करने के लिए वो सुविधाएं आप शुरू करेंगे? थैंक यू। मेरे बिल्कुल सही है कि अच्छा खाना लोगों को मिलना चाहिए, गर्म भी मिलना चाहिए ताकि पैसेंजर भी अपने दिमाग से गर्म न हो, अच्छी तरह से खाना खा सके। तो ये करने के लिए हम पूरी मात्रा में प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कि जो बेस किचन बनाए जाएंगे, मैंने तो हमारे रेल बोर्ड को आदेश दिया, अभी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, आज कह दिया कल से बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जहाँ से जहाँ यानी कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर बेस किचन में खाना मिलेगा कि ट्रेन जब पास करेगी उनको गर्म खाना वहाँ से पिकअप करके डिस्ट्रीब्यूट करने को लोगों को मिलेगा। सर अभी आज भी जो हवाई जहाज में खाना मिलता है वो बहुत पहले पकाया जाता है, उसमें बहुत सारा समय जाता है। तो यदि हम ट्रेन में लोगों को बहुत ही अच्छा फ्रेश खाना देने में कामयाब रहेंगे, इसके लिए नया जो नीति बनाई उसमें बेस किचन की भी सुविधा है। तो दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति से कि हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि लोगों को एथनिक खाना मिले, यानी जयराम रमेश चाहेंगे तो उनको मैसूर का खाना मिलना चाहिए,
हमारे उनके लिए आंध्र प्रदेश का खाना हमारी बहन को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने नए प्रयास की जो शुरुआत की, उसमें एथनिक खाना लोगों को कैसे मिले, उसकी जो शुरुआत मैंने बजट स्पीच में कही थी। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि हमने ई कैटरिंग के तहत कोंकण में वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, वो जो खाना बना रही है वो खाना हम लोगों ने वहां से लेकर लोगों को दे रहे हैं। उसके लिए इतना अच्छा लोगों का प्रतिसाद है कि हम चाहते हैं इसके बहुत सारी मात्रा में एक एथनिक फूड भी लोगों को मिले। हम नहीं चाहते कि सिर्फ वेजिटेरियन में पनीर, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं भी पनीर को इतना नहीं पसंद करता हूं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इतनी खाने की विविधता है, क्यों ना वो विविधता हमारे केटरिंग सर्विस में भी उसका रिफ्लेक्शन हो, लोगों को खाना अच्छा मिले। थैंक यू श्री बोरा। Thank you, Deputy. Thank you, Chairman Sir. Ji. My specific question to the Honorable Railway Minister. Just now he have said, he praised the food quality in other destinations. But so far our Assam is concerned, I am regular traveler in the Rajdhani Express, Guwahati-bound Rajdhani Express. The food quality is very, very poor, very bad and very unhygienic. And I fully agree with my other friends that the food is stored just in front of the toilets. So now my question is to the Honorable Minister. Will the Honorable Minister make some provisions of some helpline and a special squad that on the spot when we get any complaint, if we raise the complaint in the helpline or special squad, will he take the action immediately? Just answer that part. That we already created a helpline number which is available. In addition to that, those who wish to communicate to us through social media, they can do that. But as you said, the essential part of changing the policy, the reason for changing the policy, the justification for changing the policy, the rationale for changing the policy was exactly the same. That today, the type of food that is served to the private contractors is not living up to the expectations of the people, and therefore we are changing it completely. I fully appreciate, and that was the need for changing the policy. That's why I announced in my previous budget speech, and we consulted large number of people, because it is not easy, as you know, in the government to change something. It takes so many stakeholders, so many interests. So we actually addressed this, and we have changed the policy. Thank you. Question 112. Srinanda. Question admit 112. Ji. Supplementary. Sir, I am asking one supplementary to you, to the Minister. How much food grain has been allocated and dispatched to various states against their respective demands? How much grain has been distributed? Honorable Chairman, sir, in fact, the question is related with the कि हमारे देश में कितने लोग भूख से या 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है। आपने अभी पूछा कि कितना ग्रेन किस स्टेट को भेजा जा रहा है, वो पूरी स्टेटमेंट की एक लिस्ट दे दी जाएगी आपको। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जितना NFA से लागू होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है, भारत की 2/3 पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस NFA से, 75% पॉपुलेशन इन रूरल, 50% in urban, and they all are getting highly subsidized meal. सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, बात तो सुन लीजिए उनकी। I am coming on that line also. Highly subsidized food is being given, और पूरे देश के अंदर लोगों को रूरल अर्बन को दिया जा रहा है। कोई ऐसा स्टेट जिसको जितना पहले मिल रहा था NFA से लागू होने से पहले, उसमें कहीं कमी नहीं रखी गई है, और जितना मिल रहा था उससे करीब सभी स्टेट्स को ज़्यादा फूड दिया जा रहा है। आपके स्टेट की कोई पर्टिकुलर बात हो कि साहब हमारे को फूड कम मिला है या कि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, देन यू कैन टेल अस। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन जो मैं पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। मैं पूछा था स्टेट का कितना डिमांड था, कितना भेजे। अच्छा, पर्टिकुलर एक स्टेट का बारे में मैं आपको पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश कितना डिमांड था उत्तर प्रदेश में? सब स्टेट का आंकड़ा है, इसको पढ़ने में 3-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे। आप कहिए तो मैं स्टेट वाइज पढ़ के सुना देता हूँ कि कितने व्यक्ति कवरेज हैं
शहर में कितने हैं, रूरल एरिया में कितने हैं, कितने परसेंटेज हैं, कितने। इसलिए मंत्री जी ने कहा कि आप किसी स्टेट का कहें तो मैं बतला दूं, नहीं तो आपको एक कागज, मैं आपको आपके सदन पर कागज रख देता हूं, हर स्टेट का इसमें पूरा का पूरा विवरण रखा हुआ है। नहीं, आप एक स्टेट के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश में डिमांड कितना था, आप कितने भेजा? देखिए, उत्तर प्रदेश का मैं आपको बतलाता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो NFSA लागू हुआ है वो 16 जनवरी को लागू हुआ, और उसके बाद जो है पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो 1995 के आधार पर है। परसेंटेज ऑफ कवरेज जो है वो रूरल एरिया में 79% है, शहरी एरिया में 64% है। टोटल और क्या टोटल ग्रामीण टोटल क्या कहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स अंडर NFSA जो है वो ग्रामीण एरिया में 1234 है करोड़, और उस ये शहरी एरिया में जो है 286 लाख क्या कहते हैं कि है। और इसी तरीके से आप यदि पूछेंगे अंत्योदय के संबंध में तो अंत्योदय का क्या कहते हैं कि 40 है, और जो है रूरल एरिया में नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 164 है। तो इस तरीके से करके पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि विवरण है। और जो जैसा कि सबको मालूम है ये यूपीए सरकार का उसमें बहुत बड़ा देन है। और उसमें सर एक मिनट, जो हम देते हैं वो पर व्यक्ति, पहले क्या था कि बीपीएल था, एपीएल था, तो बीपीएल के परिवार को 35 केजी जो है अनाज दिया जाता था, एक परिवार के ऊपर में 35 केजी अनाज दिया जाता था। अब परिवार के ऊपर में क्या कहते हैं कि नहीं है, अब व्यक्ति के ऊपर में है, और पर व्यक्ति को पर मंथ जो है 5 केजी अनाज दिया जाता है। और जितने पर्सन्स का नाम हमने कहा है प्रति व्यक्ति को 5 से गुना कर दीजिए, उतना अनाज भेजा जाता है। लेकिन क्या है कि अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी सूची नहीं भेजी गई है। 50 लाख वहाँ जितना होना चाहिए उससे कम है। बिहार में भी क्या कहते हैं कम है। जितना जल्दी सूची हमको भेज दें उतना और लोगों को भेज देंगे, और इसलिए पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को जो है सो मिलना चाहिए, जिसमें 79 करोड़ लोगों को ऑलरेडी क्या कहते हैं कि मिल रहा है। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और बहुत सी राज्य सरकारें हैं जो अपने तरफ से भी लगाती हैं। लेकिन यदि हम 20 रुपया में खरीदते हैं गेहूं तो हम 18 रुपया भारत सरकार उसमें देती है। यदि हम ये चावल खरीदते हैं 30 रुपया या 31 रुपया में खरीदते हैं तो 28 रुपया भारत सरकार देती है। राज्य सरकार जो लगाना चाहे, बहुत सी राज्य सरकार लगाती है, तमिलनाडु वगैरह में जो फ्री में देती है। आप भी बहुत सरकार है जो 1 रुपया सब्सिडी देती है। इसलिए जो अनाज है, अनाज पर व्यक्ति के आधार पर 5 केजी है। थैंक यू। श्री तपन कुमार से Very specific. Out of the coverage you have told about 75% and 50% rural and urban area. What is the actual coverage and what is the exclusion? Owing to your insistence for linkage of Aadhaar, number 1, and number 2, even those who are given Aadhaar, their biometric is not matching. Because of that, the exclusion from their entitlement under Food Security Act, what is the percentage? 75 and 50 is guaranteed by the government, by the Act. So, what is the exclusion, deprivation under on their constitutional right under this Act? To my information, it is more than 30% throughout the country. Because of Aadhaar, your insistence for Aadhaar, because a substantial population is not Aadhaar linkage, those who are entitled for getting this. And second, those who are having Aadhaar, their biometric is not matching. All these taken together, what is the percentage? To my information, it is 30%. Whether it is more or less. पति जी, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहूँगा कि सरकार की पॉलिसी है कि सबको आधार कार्ड से जोड़ा जाए। लेकिन आधार कार्ड नहीं रहने के कारण किसी को अनाज क्या कहते हैं कि नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, इसको हम रूल आउट करते हैं। हमने आपको कहा कि 81 करोड़ लोगों को जो है प्रावधान है, जिसमें से 79 करोड़ लोगों को अभी तक क्या कहते हैं कि मिल रहा है।
बकिए लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को जो है, जो बचे हुए लोग हैं उनको नाम को भेजना चाहिए। हमारे यहाँ 81 करोड़ का प्रावधान है। Question are over, please. Mr. Tapal Sen, question are over. House adjourned till 2:30 p.m. 7th